Hello students, welcome back to my YouTube channel Mamta Classes. In the previous video, we learned about complex number, what are they, how they derive, what are their forms, how we write it, and we just do basic how to operate on addition. Today, we will learn how to do subtraction, multiplication and division of complex number. Obviously, we have did addition with the very basic, and in the same process we will proceed for the subtraction. Sometimes subtraction is also written as difference of complex number. Difference of complex numbers. This is the short form I used to write for numbers. Basically, just you have some randoms any two complex number, and the basic division for them is, suppose z1 is of the form a plus iota b and z2 is of the form c plus iota d, then z1 minus z2 will be a minus c plus iota b minus t. We will proceed with the same way. Real part will be subtracted from real part and imaginary part will be subtracted from the imaginary part. Okay, is that clear? Now just hold for a second. Now, how we will multiply? This is the quite important part from the perspective of IIT or any other competitive exam if you are preparing, like if you are giving any kind of entrance, obviously for the bachelor's, for the BTech, for the B architecture, and even though if you want to take coaching, like if suppose you are in 10th and you want to take coaching for 11th and 12th for JEE or for something else, so this is the basic concept that is used in exams to ask the question. So multiplication is pretty important topic in complex as well as division also. Okay, so we will proceed with the multiplication. Look, for multiplication how we will do. अभी तक हमने जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन किया था, हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ डील करते थे एंड इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी के साथ. बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होगा. क्यों? सपोज z1 is something a of iota b and z2 is something c plus iota t. It may be of the form, sometimes it is written as x plus iota y. Don't get confused with this. Now हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे z1 डॉट z2, जैसे हम बेसिक अलजेब्रा अभी तक करते आए हैं ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन a प्लस आयोटा b इंटू c प्लस आयोटा d. c को पहले हम इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इमेजिनरी पार्ट को इन दोनों नंबर से. c is multiplied by a, it becomes ac, plus when it is multiplied by iota b, it becomes iota into b into c plus iota into a into d प्लस आयोटा का स्क्वायर b इंटू डी. ठीक है. नाउ ए सी प्लस आयोटा, अगर इसमें से कॉमन ले लूँ, अंदर बच गया बी सी प्लस ई डी प्लस आयोटा स्क्वायर b इंटू टी. जस्ट फॉर नाउ, जस्ट रिमेंबर आयोटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू -1. जस्ट फॉर नाउ आई विल डील विद दिस इन दिस वीडियो. Okay, तो AC minus BD, because I already told you iota square is equals to -1 plus iota BC plus CD. Is it clear? So this is the simple multiplication. Now before going deeply in multiplication, let me tell you something. Power of iota, how it works, so that you don't get confused or you becomes familiar with iota. What is iota? हमने iota को कल सीखा था. iota can be written as under root -1. Suppose iota को iota से मल्टीप्लाई करना, दैट मीन अंडर रूट -1 अंडर रूट -1. हमें पता है जब सेम ही नंबर को अंडर रूट के अंदर हम मल्टीप्लाई करते हैं, देन इट बिकम्स पावर बिकम्स 1, देन दिस इज -1. दैट मीन आयोटा स्क्वायर कितना हो गया? -1.
सिमिलरली आयोटा स्क्वायर को अगर मैं आयोटा से मल्टीप्लाई करूं तो इसका क्या होगा, -1 इंटू आयोटा, it becomes iota cube and it becomes -10 of iota. Similarly, we multiply by iota again both side, iota to the power 4 and it becomes iota square, and we already know iota square is -1, so this becomes plus of 1. क्लियर है, मतलब आयोटा की पावर 4 और आयोटा टू द पावर 4 के मल्टीपल विल ऑलवेज बी रिजल्ट इन 1, ऑलवेज. इज इट क्लियर? Now next is, what if we write like some random power, iota to the power 18? How we will solve it? Now look, we can break this like iota into 16 and iota into 2. Why do I write 16? Because just now we learned iota to the power 4 or iota to the power multiple of 4 is 1. So this is the multiple of 4. It can be written as iota to the power 4 to the power 4 into iota square, and this we know is 1, and iota square is obviously -1. So the answer is -1. Is that clear? Look, this is another important section. Obviously this is pretty important topic, very, but this is also you must know how to deal with. हम आयोटा की पावर सॉल्व नहीं करेंगे, we just need to calculate or manipulate it in short way. हमें पता होना चाहिए, और ये रिजल्ट ऐसा नहीं है कि आपको रिजल्ट के तौर पे याद रखना है. जब आप प्रैक्टिस करेंगे सम की तो आपको खुद ब खुद ये चीज फील होने लगेगी, ठीक है. और अगर नहीं होती, इन केस यू आर नॉट गेटिंग फेमिलियर, डू मोर प्रैक्टिस, मोर, एंड for the initials you can just memorize it, but try to do a lot of practice in case if you are not getting the point. Okay, let us do another also, like if you have something like iota to the power, कुछ बड़ा नंबर ले लेते हैं, सपोज 125 और iota to the power 369, some random numbers I am taking. Now look, iota to the power 25, this can be written as iota to the power, okay wait, it can be written as iota to the power 31 into iota, sorry, wait, iota to the power 4 into 31 into iota. Is it clear? मैंने इसको क्या किया, बेसिकली मैंने इसको ब्रेक किया, आयोटा टू द पावर 12 4 इंटू आयोटा. 124 इसलिए क्योंकि 125 इसके आसपास का नंबर जो 4 से डिविजिबल होता है दैट इज 124, दैट्स व्हाई वी राइट हियर 124 एंड इनटू आयोटा. तो टोटल पावर हमारे पास 125 होगी यूजिंग द एक्सपोनेंट लॉ. अब 124 को हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा टू द पावर 4 टू द पावर 31 इंटू आयोटा. Iota to the power 4 is 1, 1 की power 1, and this is iota. The answer is iota only. Is it clear? Similarly, see, now how we can write it as, this can be written as 36. 36 is completely divisible by 4 on 9, and this is completely divisible by 8. Okay. So it can be also written as 368 into iota. This has also become the similar form. So I hope you get my point. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसको पावर को कैसे ब्रेक करना है, इट्स ओके, यू कैन जस्ट डिवाइड सिंपली. जो भी रिमाइंडर बच जाए, अब 125 को डिवाइड किया तो 3 पे 12, 5 के नीचे 1 पे 4, तो 1 रहेगा. तो आयोटा की पावर जितना रिमाइंडर रहेगा ना उसको सेपरेट कर दो और बाकी पावर को एज इट इज लिखो, और फिर उसको हम मल्टीपल में लिख सकते हैं. इन केस यू डोंट वांट टू डू दिस,
जस्ट डू इट विथ 2, 2 से डिवाइड कर दो। क्यों? क्योंकि आयोटा की पावर 2 इज ऑल्सो -1। इज इट क्लियर? दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग यू मस्ट नो एंड मस्ट मेमोराइज। नाउ there is another one thing that you must know, that is in this in this we just deal with the positive power of iota. Now if you are having negative power of iota, how will you work on that, on the negative power of iota? That is, for example, iota to the power -1। अब इसके साथ कैसे डील करेंगे? देखो, जब भी नेगेटिव, क्योंकि आयोटा है क्या है, मेरे पास एक नंबर ही है, वी आर स्टडिंग कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये भी एक नंबर ही है, वी जस्ट सिंपली राइट इट 1/आयोटा। अब हाउ वी विल सिंप्लीफाई दिस? देखो, रियल नंबर जब हमने पढ़ा था तब वहां पे इरेशनल टर्म्स को हमने रेशनलाइज करना सीखा था। सिमिलरली वी विल रेशनलाइज दिस। तो आयोटा से ही मल्टीप्लाई और आयोटा से ही डिवाइड, तो कितना हो गया? आयोटा बाय में आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू आयोटा बाय में -1 विच कैन बी रिटन एज माइनस टाइम ऑफ आयोटा। इज इट क्लियर? यहाँ पे हम रेशनलाइजिंग यूज कर रहे हैं टू सॉल्व द नेगेटिव पावर ऑफ आयोटा। ओके, सिमिलरली इफ यू हैव समथिंग लाइक just a random number 1 - 3 iota, and you have to work on this, like you have to simplify this. Why I'm taking this? Because here is the single digit and now I'm taking in the pair. So how we will do this? 1 + 3 iota by me 1 + 3 iota. One plus 3 iota by me. Look, this is a minus b, this is a plus b. The identity is a minus b, a plus b is equals to a square minus b square. But in this case, a minus iota b, a plus iota b becomes a square plus b square. Why is it so? Because identity, when we are applying, it becomes like this. And iota square minus iota square into b square. Now we know iota square is negative, and negative becomes positive in multiplication. So this is the final answer. So 1 + 9. So this is the final answer. Is it clear? I hope this is helpful. This is pretty important, so work on that. Now we will back to our topic, multiplication. This is the simple multiplication. Now I hope you get my point how to do multiplications. Now there are few properties of multiplications, like, as you all know, closure property, associativity, commutative, identity, existence of identity, and existence of inverse and distributive property. क्लोजर क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट्स लिए z1 z2, उसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं देन इट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑब्वियसली। क्योंकि अगर हमारे पास कोई सिंपल इंटीजर भी आ जाता है, कोई सिंपल नंबर, दैट इज ऑल्सो अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज दैट कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ 2 + iota 0. कॉम्यूटेटिव इज z1 × z2 कीजिए या z2 × z1 कीजिए, बात एक ही है. आइडेंटिटी, नाउ व्हाट डज इट मीन्स, एंड दीज टू आर द इम्पोर्टेंट. आइडेंटिटी बेसिकली हम किसी भी नंबर को, सपोज दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, रैंडम नंबर, ठीक है, मैं इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि वापस से यही नंबर आ जाए. ऑब्वियस सी बात है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, दैट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स, एंड 1 इज द बेस्ट आंसर, बट 1 शुड बी रिटन इन द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, दैट इज 1 + 0 iota. Is it clear? Is it clear? This is known as existence of identity. Second thing is inverse. Existence of inverse. As we all know,
कि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि यहाँ पे 1 बन जाए। 1 क्यों? क्योंकि इसकी एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी, 1 इज द आइडेंटिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ जाए, एक नंबर ही तो है। सपोज अगर मुझे 2 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 1 आ जाए, तो जाहिर सी बात है मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/z से। अब वो 1/z का जो नंबर होगा, व्हाट काइंड ऑफ दैट फॉर्म शुड बी। अब उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन नहीं मतलब प्रूफ देखते हैं। कैसे? ये तो मैंने कह दिया और आपने मान लिया, बट लेट इट वर्क। कैसे? z इंटू z1 इज इक्वल्स टू 1। ये z कोई नंबर है मेरे पास, कुछ a प्लस आयोटा b की फॉर्म। ये वो नंबर है जिसको मैं z1 से मल्टीप्लाई करूं तो 1 बन रहा है, और z1 को मैंने ले लिया कुछ x प्लस आयोटा y की फॉर्म में। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, क्योंकि हमें इनवर्स निकालना है। वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो a प्लस आयोटा b इंटू एक्स प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 1। हमने अभी भी मल्टीप्लीकेशन की है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगी? ax प्लस आयोटा bx प्लस आयोटा ay प्लस आयोटा स्क्वायर, दिस बिकम्स नेगेटिव ऑफ by इज इक्वल्स टू 1। ax माइनस by प्लस आयोटा अगर हम कॉमन ले लें bx प्लस ay विच इज इक्वल्स टू 1। दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस 0 आयोटा। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमने कल सीखा था अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, दैट मीन द रियल पार्ट्स आर इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट आर इक्वल। दैट मीन ax माइनस by इज इक्वल्स टू 1 एंड bx प्लस ay इज इक्वल्स टू 0। इज इट क्लियर? अब यहां से या तो x की दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है। डोंट टेक a एंड b एज अ वेरिएबल राइट नाउ बिकॉज वी नीड टू फाइंड x प्लस आयोटा y। सो x एंड y आर द वेरिएबल्स इन दिस टू इक्वेशंस। यहाँ से x की वैल्यू निकाली अगर मैंने, तो क्या आ गई? माइनस टाइम ऑफ ए वाई बाय में b। और ये इक्वेशन, ये वैल्यू x की अगर मैं इसमें पुट करूँ, x की वैल्यू कितनी थी? माइनस टाइम ऑफ ए वाई बाय में b माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से क्या हो गया? माइनस ए स्क्र वाई बाय में b माइनस का बी वाई इज इक्वल्स टू में 1। एलसीएम लेंगे, माइनस ए स्क्र माइनस बी स्क्र, और दोनों से y मैंने कॉमन ले लिया, बाय में b इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, y इज इक्वल्स टू माइनस टाइम ऑफ b ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। और अगर इस y को मैं इस x में पुट कर दूँ जहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाली थी, तो हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ जाएगी। देखो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी? माइनस टाइम ऑफ ए वाई बाय में b, एंड जो y की वैल्यू हमारी फाइनल आई थी इन टर्म्स ऑफ a एंड b, दैट इज b ओवर ए स्क्र प्लस बी स्क्र। ठीक है, अब इस y को इसमें पुट करेंगे तो x कितना आ जाएगा? माइनस ऑफ a बाय में b, y की वैल्यू माइनस टाइम ऑफ b बाय में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। b से b कैंसल, माइनस माइनस पॉजिटिव एंड इट बिकम्स a बाय में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। इज इट क्लियर? अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चन था, ये z इंटू z1 इज इक्वल्स टू 1। मेरे पास z1 आ गया, z1 इज ऑफ द फॉर्म, यहां से मेरे पास z1 आ गया, x की वैल्यू यही है a बाय में ए स्क्र प्लस वाई स्क्र, और y की वैल्यू ये नेगेटिव ऑफ b बाय में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। मैंने क्लेम किया था z1 इज इक्वल्स टू z इंटू z1 इज इक्वल्स टू 1। पुट करके देखें क्या मेरी वैल्यू वेरीफाई हो रही है या नहीं हो रही। z क्या था? a प्लस आयोटा b। z1 क्या है हमारे पास? a बाय में ए स्क्र प्लस बी स्क्र, यहाँ पे बी स्क्र है सॉरी, माइनस आयोटा b बाय में ए स्क्र प्लस बी स्क्र। a प्लस आयोटा b, एलसीएम लेंगे, बेस सेम है, न्यूमिनेटर आर सेम, देन simply we subtract the denominator are same, simply we subtract the numerator a square plus b square। अब ऊपर न्यूमिनेटर में आइडेंटिटी क्या बन रही है? a प्लस b, a माइनस b। इन द केस ऑफ कॉम्प्लेक्स दिस बिकम्स a स्क्र प्लस b स्क्र।
a square plus b square by a square plus b square, which is equals to what? 1. This is we claim. Hence जो हमने क्वेश्चंस लिए थे, मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स बेसिकली क्या होगा? 1 बाय जेड. एंड जो इनवर्स होता है डेट कैन बी रिटन एज 1 बाय जेड और इट कैन बी डिनोटेड एज जेड इनवर्स. Is it clear? Is it clear? I hope this video is helpful to you students. It's a request to subscribe my channel, share it more with your friends, share it with the needy one. Do like, do comment, and let me know if you want something else or something very basic or of some of advanced level. Let me know in the comment section. Okay. The last property we talked about is distributive property. Distributive property means what? अगर Z1 Z2 plus Z3 है basically, तो it can be written as Z1 into Z2 plus Z1 into Z3. और Z1 plus Z2 है, तो अगर हम Z3 से मल्टीप्लाई करें तो Z1 into Z3 प्लस Z2 into Z3. बेसिकली क्योंकि हमारे पास कॉमोडिटी प्रॉपर्टी है तो ये कहता है कि अगर हम इसको ऐसे सॉल्व करें या ऐसे सॉल्व करें, आंसर दोनों का सेम ही आएगा. इज इट क्लियर? इज इट क्लियर guys? Please share the channel more and more. I'm trying my best to upload all the videos content related to 11th and 12th maths as well as 9th and 10th maths with science. So do share it. If you want to take my classes, you can contact me or just comment me. Let me know. I will definitely gonna answer you. Thank you.